क्लैरिटी है कि आपको रिसर्च में जाना है। एनआई में ऐसा नहीं है, उनका ओपन एग्जाम रहता है, डबल इंटरव्यू होता है। पहले से ही माइंडसेट जरूर करके चलो कि ठीक है ये मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन इन केस अगर ये नहीं मिलता तो मेरे पास दूसरी प्रायोरिटीज भी हैं। सो वी आर हियर to discuss the future perspective, to discuss what are the areas after qualifying these exams like CSIR, NET and other PhD entrance examinations. We have Dr. Pooja with us, and Dr. Pooja has मैम का जो PhD है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी JNU से है, एंड मैम हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च। और इसके साथ साथ में मैम का खुद का भी एक वेंचर है। तो आप लोग भी अगर आपके कुछ क्वेरीज हों फ्यूचर में कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आपके लिए बेटर फील्ड रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम, आप लाइफ साइंस से हैं या केमिस्ट्री से हैं या मैथमेटिकल साइंस से हैं या आप फिजिकल साइंसेस से हैं, यू कैन आस्क बिकॉज वी हैव ऑल द लाइफ फैकल्टीज हियर जो आपको गाइड कर सकती है। मैम भी हमारे साथ में है। Just to introduce myself, my background, I just inform you that I did my B.Pharmacy from IIT BHU, pursued my master's in biotechnology from BITS Pilani, then pursued my PhD in immunology from National Institute of Immunology. So I was quite fascinated with research and in fact more of into product development. That is my core area, because being a pharmacist we know that how important is new product or maybe a drug or delivery system. So at the various institute like at NII or at ICGB, DRDO, I'm mainly interested in the product development. So at NII, I developed a vaccine which can be inhaled, that is against the tuberculosis. So Dr. P.K. Upadhyay was my guide there. His lab was working with on the tuberculosis, and he wanted to explore can these vaccine be a needle-free possibility, because every time you need to prick and you generate a lot of waste out of that. So is it possible to that somebody can inhale those vaccine and just get vaccinated rather than? So we developed aerosol-based vaccine for tuberculosis. Then I worked with the DRDO, where Dr. Aseem Bhatnagar was my guide, as a guide or the mentor, I should say. So I worked as a scientist there. So we developed some systems there for maybe chitosan-based wound healing systems. We did some radio protectant. DRDO is basically a military organization which they help in working with the soldiers to ease out their life in the war field. So soldier can experience maybe at that time, the most upcoming area was that maybe we can get attacked by a nuclear attack or something like that. So they were working with the radio protectant. So we were developing some of the product which can protect the soldier from if there is a radiation exposure suddenly, and if they get that kind of exposure, how they can protect. So we develop a melatonin based tablets and injectables, and we've developed some injectable which can be if you can take a sublingual injection easily, so that your pain can immediately can reduced, right? Getting an injection directly in the nerve may be difficult, but getting a sublingual injection is easier. Then I moved to the spinal injury center, where I worked with the spinal cord injured patients. So healing in the spinal cord injured patient is impossible right now. It's people are working on it. There's a hardly 1 or 2% success in that, where the people usually get healed either through the physical exercise, but people are working with the stem cells also. They wanted to they inject in the spinal cord and see the development, but we have not seen much of success in that. So we were also trying to develop a new neuronal system which can be developed in the lab and can be re-injected into the patient. Then we're working with the comorbidity which spinal cord injury patient faces, the bed sores. So we were developing treatment for their bed sores, self-healing gauges, which are silk-based gauges. So we applied for a patent also for that. So if you talk about research, it's all about from your inside, what you can thought about.
how can new innovation you can think. It's not about only the life sciences, because I am belong to life sciences, so I talk about life sciences product. But if you're from other field, like even from chemistry, say you are there, so you may be working some new organic compound which can be used as a drug. So no, you can produce new drugs. So you have to be very creative, very innovative. What new molecule could be possible? How you can change it based on the receptor molecules? How can you do it? So if you talk about mathematics, I'm talking about hospital industry and the drug, because I'm more of from that. So now the new things are coming is AI, artificial intelligence, where you have to create a mathematical modeling for maybe for a uh, uh, say that how the disease is getting progression would be. So if you can based on that present position of the patient, you can create some kind of mathematical modeling that how it will get progressed if the particular disease it's not cured, or what could be the scenario out of it. Or maybe some you can create some new uh, artificial based intelligence based some maybe some prediction model, prediction modeling you can do. So lots of things you can do. And so research is not about getting into your own field. Now the research is ever evolving. Now research is more of into collaborative. You can't say you are a life science person, you will not move ahead or you won't work in other field. Now the main aim, if we were talking about the in India or in abroad also, so that boundary is totally dissolved. Now the people in IIT are working with the doctors for developing new methodologies. For example, if I tell you right now, we were developing with the IIT Chennai. So we were working with the IIT Chennai. That person is creating a model how to put a screw in the spinal when they are doing a treatment. So what is the best positioning of the screw would be. So here a doctor is asking a mathematicians to how to, or a mechanical engineer to create a model for them so they can explain it, which is the best fit model for a placement of the screws. So that kind of research is now evolving. You need to be more creative. You need to be more informed about what kind of problem are there and for what you can create the solution for it, right? So any more questions? थैंक यू सो मच मैम. हमारे साथ ना बच्चे मैम ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं. तो अब अगर आपके कोई डाउट्स है, सपोज आपने केमिस्ट्री में क्वालिफाइड किया है, लाइफ साइंस में क्वालिफाइड किया है, अगर आपको जानना चाहते हैं कि आपके लिए अब फ्यूचर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाइड तो कर लिया है बट दे डोंट वांट टू परस्यू द PhD, दे जस्ट वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर. या कुछ लोग ऐसे हैं जो रिसर्च पे जाना चाहते हैं. तो रिसर्च में अगर वो जाना चाहते हैं, उनके लिए बेटर ऑप्शंस क्या रहेंगे इंडिया में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम. Suppose you want to pursue your PhD research from IIT, you want to pursue your research from the DRDO या other government organization या government funded labs, like there are many labs of CSIR, many labs of DBT, CSIR even broad spectrum की हम लोग बात करें, CSIR में हर तरीके के रिसर्च की लेबॉर्ट्रीज़ हैं हमारे पास. आप केमिस्ट्री की बात करें, आप फिजिक्स की बात करें, आप मैथमेटिक्स की बात करें. इसके अलावा इंडिविजुअल हमारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस भी हैं. नाउ वी हैव आईसर्स, वी हैव अदर ICMR बेस्ड इंस्टीट्यूट. तो आपके लिए क्या बेटर ऑप्शंस रहेगा अगर आपको इस चीज़ को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है कि सर हमने इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वी हैव एक्सपर्टीज़ ओवर हियर, यू कैन आस्क अस. और बाकी मैम भी हैं जो फिजिकल साइंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगी. अगर आपने CSI नेट भी क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद की जो जर्नी है मेनली स्टूडेंट्स को ये होता है कि स्टार्ट कैसे करें, या फिर ऐसा होता है कि PhD तो करनी है बट मुझे ये नहीं पता कि
क्या मुझे यही पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मतलब सभी स्टूडेंट्स ये पॉइंट फेस करते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स में ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, एंड इन फैक्ट अगर आप वो करके चलते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट करंटली जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है वो यही है कि क्या मतलब कौन सा ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि मुझे इसी फील्ड में करना चाहिए, दैट हाउ शुड आई सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो मेनली वैसे तो मास्टर्स के टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, आप वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हो। मतलब वर्कशॉप्स भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़िज़िकल साइंस की बात करूँ तो नैनो टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट की तरह हम इसे नहीं पढ़ते हैं, बट इसके ऊपर वर्कशॉप्स बहुत सारे होते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हाँ इस फील्ड में भी आप अच्छी रिसर्च कर सकते हो। तो वर्कशॉप से ना बहुत आपकी जो क्रिएटिविटी है या फिर आपका होराइज़न एक्सपैंड होता है कि इसमें भी किया जा सकता है। एंड इसी के साथ साथ वर्कशॉप्स तो बहुत बेसिक थिंग है जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए अगर इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि क्या पर्टिकुलर टॉपिक में आप आगे परस्यू करो। एंड उसके साथ साथ मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो आईआईटी गांधीनगर से बिकॉज़ मैंने की है, तो आईआईटीज़ में ये ऑप्शन भी होता है कि रीडिंग प्रोजेक्ट का ऑप्शन होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो रीडिंग प्रोजेक्ट में भी आप एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक चूज़ करके उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर आएगा, लेट्स सपोज, उसमें आप अगर वो नहीं पसंद आया, आपने चेंज कर लिया, सो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपके माइंड में ये क्लैरिटी है कि आपको रिसर्च में जाना है तो आपको बिल्कुल वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर अभी नहीं है तो आई वुड से, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आई वुड से कि आप वर्कशॉप्स ही ज्वाइन करो ताकि वो चीज़ की क्लैरिटी आए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में जाना है। एंड अभी और भी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि अभी अभी आपने एक जर्नी जो आपकी थी, एक जर्नी आप लोग क्रॉस कर चुके हो। अब जो अगली जर्नी है वो ये है कि आप नेट तो निकाल चुके हो या जेआरएफ निकाल चुके हो, तो कहाँ आपको कैसे जाना है। तो जैसा मैम ने बोला कि अगर आपके पास खाली टाइम है, जैसे 1-1.5 महीने के या 15-15 दिन के जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं ना, आप लैब ज्वाइन करने से पहले उसको चूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा एक एक्सपोजर ले सकते हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने कभी एक्सपोजर लिया ही ना हो, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे कि हमको तो इसी लैब में जाना है। वो ठीक है, आपने अपना माइंड बना रखा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों ने अपने डोमेन डिसाइड कर लिए होंगे कि हमारे पास तो ये डोमेन है। लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ बोलूँगा कि इस समय जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं, जैसे सर ने बताया, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, CSIR की लैब्स हैं, ICMR फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अपनी लैब्स हैं, DBT की लैब्स हैं। तो आप अपने आप को ना रेस्ट्रिक्टेड मत करो इस समय। आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप सारे फॉर्म भरो। जहाँ जहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल आती है, आप देख के आओ, बैठ के आओ। क्योंकि एक ये भी होगा कि आप जब फर्स्ट टाइम पहला इंटरव्यू दे रहे होगे ना, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रही होगी। वहाँ पर 10 लोगों का पैनल बैठा है और एकदम से आप नर्वस हो गए। तो ये धीरे धीरे आपको क्या करना है, ये चीज़ें सीखनी है। और जितना ज़्यादा एक्सपोजर आप लोगे, उतना क्या होगा, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी अंदर, और आप अपने आप को कैसे सामने रिप्रेजेंट करना है, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो अपने आप को पीछे मत हटाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ। जितने अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जितने वॉक इन इंटरव्यू मिल रहे हैं या जितने आपके कॉल आ रही हैं, आप सबको दे के आओ। भले ही आपको उधर जाना है या नहीं जाना है, वो बात की बात है, अपने आप को फेस करके आओ। ये सबसे बड़ा इस समय आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका अपना डोमेन है, आपने कुछ डोमेन अगर चूज़ किए हैं कि वो भी बहुत अच्छी बात है, तो उस तरह से आप एक बार कोशिश करोगे। तो मैं क्वेश्चंस भी अगर आपके हैं तो साथ के साथ लेते रहेंगे। जैसे शायद एक स्टूडेंट अभी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। मैम मेरी पीजी जो है बॉटनी सब्जेक्ट से है, मैं एनआईए से। बच्चा पूछ रहा है कि उसकी जो MSc है वो बॉटनी से है, बट वो NII से PhD करना चाह रहा है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चे हमारी ही लैब में सीनियर थे अरविंद थापा, उनका जो मास्टर्स था वो बॉटनी में था एंड ही डिड हिज PhD इन इम्यूनोलॉजी। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। जब आप मास्टर्स का सब्जेक्ट आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है कि आपको फ्यूचर में रिसर्च किस में करना है। इवन बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है NII में, गीतांजलि मैम आप जानते भी होंगे, नाउ सी इज इन NIPGR, कंप्लीटली प्लांट रिसर्च पर है, बट उनकी PhD जो है इम्यूनोलॉजी में। तो आप कभी भी अपने फील्ड को स्विच कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चे इसमें ना, आपका इंटरेस्ट क्या है। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिन्होंने MSc केमिस्ट्री में किया है एंड इवन MSc फिजिक्स में किया है और अप्लाइड
जो है बायोफिजिकल में बायो या लाइफ साइंस में उन्होंने रिसर्च की है अपने। If you are ready to take up something new, you are ready to learn up something new, तो you can take up. It depends, हाँ कुछ जगह आपके लिए restrictions होती हैं कि कुछ उनका mindset होता है कि मुझे कुछ IITs में रहता है कभी कभी कि मुझे हमें इसी फील्ड के बंदे चाहिए, बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर में करनी है तो उनका बैकग्राउंड रहता है कि मैकेनिकल इंजीनियर का ही उसको नॉलेज हो, राइट। बट NI में ऐसा नहीं है, उनका ओपन एग्ज़ाम रहता है, वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करते हो एंड देन उनका जो इंटरव्यू होता है वो डबल इंटरव्यू होता है जहाँ पे आपको फर्स्टली आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है सोचने के लिए कि आप कुछ राइट अप कीजिए या प्लान अप कीजिए, उसके बेस पे आपसे क्वेश्चनिंग होती है। सेम इज़ IISc में और NCBS में भी यही मॉडलिंग रहती है, वेयर आपको एक थॉट प्रोसेस, फिर दे वांटेड टू चेक कि आपका साइंटिफिक इंटेलेक्ट क्या है, राइट। हम मास्टर्स कराने के बाद हम आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो जाता है कि यू आर रेडी टू रीड एंड लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग। अगर आप में वो कैपेसिटी है तो आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। PhD इज़ नथिंग मोर दैन, इट इज़ लाइक more of learning the experience and knowing new things, right? New techniques also. आप कभी भी सेम उसके साथ नहीं जाते हो, आपके पास न्यू नॉलेज, आप बस यू शुड बी रेडी टू लर्न एंड एक्सप्लोर। वहाँ पे आपके जो भी सीनियर्स होते हैं आपको उनसे सीखना होता है, आपके गाइड्स भी सिखाते हैं, बट यू आर रेडी टू लर्न अबाउट द थिंग्स। Yes, ma'am. Okay, thank you. I'll roll in here. I would also like to add one thing to the same question, although आपका life science से related था, but ये जो आपका question था, this was irrespective of what subject you are talking about, because first of all जैसे मैम ने भी कहा कि research अभी interdisciplinary है, it doesn't matter, because अगर हम physics में भी कर रहे हैं, we are using machine learning and data analysis and all. एंड मतलब आई थिंक आपके माइंड में ये भी होगा कि मैंने मास्टर्स तो इसमें की है और अब मैं जितना मुझे समझ आया, बिकॉज आई एम नॉट ऑफ योर सब्जेक्ट, कि अब अगर मैं दूसरे फील्ड में रिसर्च करूँ तो मेरा वो वाला भी मतलब वेस्ट माना जाएगा कि मैंने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एड अप ही होती हैं, मतलब उस चीज़ ने भी आपको एक्सपीरियंस कुछ दिया है। एंड कहीं ना कहीं जाके एज आई सेड कि रिसर्च इज़ इंटरडिसिप्लिनरी, हो सकता है कि वो जो आपने पहले पढ़ा था वो बाद में कहीं ना कहीं जाके आप यूज़ कर रहे हो, सो वो एड अप ही करेगा। बस मैंने मैम इसमें सोचा, क्योंकि पहले मैम लगता था कि नहीं स्पेसिफिक बॉटनी सब्जेक्ट से मैं करूँ, देखती कोई सब्जेक्ट कहाँ पे चूज़ करूँ, लेकिन उसके बाद में मेरे आज से 2 साल पहले मेरे पापा को शराइसिस हो गई थी, ऑटोइम्यून डिसीज़। तो फिर सर से जब मैंने यूट्यूब से सर से संपर्क किया तो देखा मैंने और क्लासेस भी लिए और बहुत सारा कुछ जाना, तो फिर मेरा मन हुआ कि मैं स्पेसिफिक उसी सब्जेक्ट से रिसर्च करूँगा ऑटोइम्यून डिसीज़ से, और मुझे नॉलेज लेनी मतलब आखिर क्या कर। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि माइंड सेट कर लेते हैं, नॉट इवन इन द लाइफ साइंसेज, आप किसी भी आपके भी डिफरेंट एरियाज़ होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, समटाइम वी रेस्ट्रिक्ट आ एरिया कि नहीं, हम मेरे को तो इसी पे काम करना है। थोड़ा सा उसको ब्रॉड रखो, क्योंकि ये चीज़ आपको आज समझ में नहीं आ रही है, बट ये चीज़ आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि अपने आप को, अपने एरिया को ब्रॉड रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली लाइफ साइंस में मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो दे वांट टू लाइक डू द रिसर्च ऑन कैंसर ओनली। अब कल उनको कैंसर नहीं मिला, वो माइंडसेट करके जा रहे हैं। आप ही सपोज कोई एक फील्ड आपका, सपोज मैं आप ही से पूछता हूँ कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड, मतलब किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री में PhD करने के लिए, क्वांटम, ठीक है। सपोज ऐसा हुआ कि आप एक माइंडसेट करके चल रहे हैं कि मेरे को क्वांटम में ही ना रिसर्च परस्यू करना है, और आपने कुछ ना कुछ तो साइंटिस्ट को, प्रोफाइल को सेलेक्ट करके भी रखा होगा ऑल ओवर इंडिया से, IIT से, या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे। इन केस वो नहीं मिलते आपको, देन आपके पास 2 चीज़ें हो, आप एक तो मोरली बहुत जो है लाइक डिमोटिवेट हो जाओगे, और फिर दूसरे फील्ड में आप एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे, लेकिन आपका मन वहाँ रह गया, आप उस फील्ड में भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले से ही माइंडसेट ज़रूर करके चलो बच्चों कि ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी है, इसको मुझे लेना है, लेकिन इन केस अगर ये नहीं मिलता तो मेरे पास दूसरी प्रायोरिटीज़ भी हैं। वो अगर आप आज ही से माइंडसेट करके चलोगे ना, कल फिर दुख नहीं होगा उतना, मतलब कल फिर वो फील नहीं आएगा कि नहीं मेरे को तो इस फील्ड में काम करना था और मुझे ये नहीं मिला।
आप कभी कभी पर्टिकुलर कैंपस में सेलेक्ट करके रखते हो कि मुझे इनके अंडर में काम करना है। अब देखो, वो आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सेलेक्ट करके रखे हैं उन पर्टिकुलर साइंटिस्ट को। मिलेगा तो किसी एक को ही ना, या वो अगर मैक्सिमम 2 स्टूडेंट ले रहे हैं तो 2 लोगों को, बाकी तो फिर डिमोटिवेट ही होंगे ना। तो इसलिए हमेशा एक अपना स्पेक्ट्रम ब्रॉड करके रखना है बच्चों। ठीक है, ठीक है। सेकेंडली जो आप ये कह रहे हो, जैसे कि आपने कहा कि क्वांटम करना है, आपको नहीं भी मिला है या सपोजली मिल गया, आपके पास सम रिलेटेड फील्ड को आपने लिया, तो आप अपना जब सब्जेक्ट टॉपिक डिसाइड करते हो तो ये तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप उसमें क्वांटम भी डाल सको। अगर आप डाल सकते हो, आपको थॉट प्रोसेसेस हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो फील्ड वो क्वांटम में नहीं काम कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वो आप किसी तरह से उसके टॉपिक में वो क्वांटम वाला डाल के आप एक अच्छा कुछ रिसर्च प्रपोजल डाल सकते हो, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। उसमें क्या है कि आप कोलैबोरेटिंग साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। आपने एक साइंटिस्ट को ज्वाइन किया, but you can ask your scientist also कि I also wanted to add this topic to me. Some way you have to definitely make a connection out of it. अगर आप वो connection बना लेते हो तो then you can make him a co-guide also. So you can get to learn from 2 scientists, which is more fascinating, more enjoyable and more learning experiences. आपको वो फील्ड नहीं मिला तो आप दूसरे फील्ड में भी काम करके उस फील्ड का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन या उस फील्ड में भी जा सकते हैं। कोलैबोरेशन, देयर आर लाइक आज के टाइम में तो जो कोलैबोरेटिव साइंस है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। आप सपोज आप लाइफ साइंस के हो, आप उसमें केमिस्ट्री के किसी भी सपोज ड्रग डिलीवरी का ही है, ड्रग डिस्कवरी का ही है, तो यू कैन कोलैबोरेट विद द अदर इंस्टीट्यूशन लाइक जो फार्मेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में। और सेम ऐसे ही जैसे मैम ने एक बहुत ही क्लासिकल सा एग्जांपल दिया, वो एआई मैथमेटिकल मॉडल। लाइक लाइफ साइंस में हम लोग किसके लिए रिसर्च कर रहे हैं? अपने बेनिफिट के लिए, और तो कोई पर्पस हमारा नहीं होता है। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं वो खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। और सपोज एक डिजीज़ ये है हमारा, उस डिजीज़ का प्रोग्रेशन कैसे होगा, अगर हम ये प्रिडिक्ट कर लें तो हमारे पास सॉल्यूशंस भी होंगे। और प्रिडिक्ट करने के लिए आप ठीक है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एनिमल सिस्टम पे, लेकिन बेस्ट मॉडल क्या रहेगा हमारे लिए आज के टाइम में? एआई या मैथमेटिकल मॉडल, क्योंकि प्रिडिक्शन तो हम मैथमेटिक्स से ही निकाल सकते हैं ना। तो ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी जो साइंसेस होते हैं ये बहुत प्रोडक्टिव भी हैं आज के टाइम में आगे के ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बचे आप लोग? मैम एक क्वेश्चन था कि अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एमएससी में वो प्रोजेक्ट नहीं किए होते मैम, उस पर अच्छा वर्क नहीं रहता है, फिर जब वो पीएचडी करना चाहे तो कैसे चूज करे कि हमारे लिए टॉपिक सही है, आगे इसका मतलब बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर इस पे बहुत डाउट रहता है सर। सी कौन सा टॉपिक अच्छा है, ये तो आप कितना उस टॉपिक को समझते हैं ये अंडरस्टैंड करना है। एंड देन क्या स्किल्स चाहिए। सी अगर आप लाइफ साइंसेज में काम कर रहे हैं और आप ऐसा प्रोजेक्ट लेते हैं जहाँ पे आपको एनिमल हैंडलिंग करनी पड़ती है, लाइक माइस पे वर्क करना है, माइस किल करना है, यू नो लाइफ साइंसेज में होगा ही होगा आपको माइस पे। इफ़ यू आर सो अफ्रेड ऑफ हैंडलिंग अ माइस, तो आई विल सजेस्ट डोंट गो इनटू दैट फील्ड वेरी क्लियरली। सिमिलरली आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आप बहुत ही सिर्फ माइक्रोस्कोपी वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ देयर आर सम कुछ लोग पीएचडी करते हैं जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे ही उनका पीएचडी का पूरा वर्क हो जाता है, कंप्लीटिंग डिटेलिंग हाउ टू इवॉल्व इट एंड एवरीथिंग। बट इफ़ यू आर सो अफ्रेड ऑफ यू नो सीइंग थ्रू माइक्रोस्कोप्स एंड ऑल दैट, तो आप डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट नहीं लोगे। आपकी क्या कैपेसिटी है, आप क्या लर्न करना चाहते हो, आप कितने कंफर्टेबल हो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन को लेके, आपको वो अपनी एबिलिटीज़ को चेक करना है। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू वर्क इन वेट लैब्स, राइट, वेट लैब का मतलब आप पूरे दिन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं 24 आवर 48 आवर एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं, एंड यू आर नॉट रेडी एबल टू यू नो आप रात को नहीं जाग सकते हैं या उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट्स अगर एनआई की बात करें तो चलते, आप प्लान करते हैं एक्सपेरिमेंट्स कि वो मिडनाइट तक ख़त्म हो जाए, बट समटाइम कुछ एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स होते हैं जो चाहते हैं
if you're not ready to do that kind of experiment, so I will suggest to get a dry labs जिसमें कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स है या अदर एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पे आपको उतना लंबा नहीं रुकना है, नहीं एक्सपेरिमेंट. सो ये आपके अपने प्रेफरेंसेस हैं कि क्या आप करना चाहते हैं डेफिनेटली. एंड आप कितना गेट अलॉन्ग. अच्छा, दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि जब भी आप चूज़ करें आप अपने साइंटिस्ट से मिले ज़रूर. जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, जिस भी लैब में जाना चाहते हैं, प्लीज़ go and discuss with the students also what kind of environment there are, because there are some high pressure labs, there are some cool going labs. डिपेंड करता है, क्योंकि जो हाई प्रेशर लैब्स करते हैं उनका प्रोडक्टिविटी, उन्हें बहुत साइंटिस्ट, दे आर वेरी साइंटिस्ट, बहुत ईगर होता है कि ये भी हो ये भी हो. इट डिपेंड्स, ये हर एक का अपना माइंडसेट होता है. ये कॉर्पोरेट लाइफ में भी जाए तो भी होता है. सो आप किस तरह की लैब में जाना पसंद करेंगे, क्या उनका क्या माइंडसेट है. टॉक टू द PhD स्कॉलर्स, उनके क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पहले उनको समझने की कोशिश कीजिए. बेस्ट और भी बेस्ट है कि आप साइंस फेयर्स लगते हैं, ठीक है. अभी शायद नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस आने वाली है. आई सजेस्ट यू पीपल गो एंड अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस. वहाँ पे हर एक लेबॉर्ट्री के द पीपल, दे साइंटिस्ट अपना वर्क प्रेजेंट करते हैं. उनके प्रॉपर व्हाट आई से इट इज बूथ्स होते हैं where they explain, present उनके क्या स्टूडेंट्स उनका क्या काम कर रहे हैं. यू गो एंड टॉक टू देम. अगर आपको अपनी फील्ड का कोई मिल रहा है उनसे बात कीजिए, वहाँ स्टूडेंट्स होंगे उनसे बात कीजिए. ट्राई टू टॉक टू देम. आप ये करना चाहते हैं, कितने फ्रेंडली हैं, या आर यू विलिंग टू वर्क ऑन. आजकल तो और भी अच्छा कम्युनिकेशन है, ईमेल सिस्टम्स हैं. ट्राई टू कनेक्ट थ्रू ईमेल विद देम. लेट देम नो. उनका कुछ पेपर्स पढ़िए एंड उसके थ्रू अपना कुछ माइंडसेट बनाइए कि मैं इस लाइफ पे इस तरह से कुछ काम करना चाहता हूँ. ट्राई टू टॉक टू देम, एक्सप्लोर देम. मैं ये वर्क करना चाहता हूँ, आर यू रेडी फॉर इट, क्या आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन. एंड दिस इज़ अ इंडियन वर्जन. आप कर सकते हैं, सेम आप अब्रॉड में भी कर सकते हैं, ठीक है. मास्टर्स में डैड के थ्रू आप वो भी कर सकते हैं. देयर आर दीज थिंग्स जहाँ पे भी आपका क्वालिफिकेशन, CSR क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट होती है. वे यू शो देम कि मेरा आई हैव अ दिस थिंग, तो वर्कआउट कर सकते हैं. यू कैन, यू नो, आई शुड से एक्सप्लोर देम. गो टू देयर वेबसाइट, सी देयर पब्लिकेशंस, ट्राई टू टॉक टू. अगर आप विसिनिटी में हैं तो आप जाके उनसे बात कर सकते हैं. और जैसे अभी पीछे ग्लोबल इंडिया करके बायोफेयर हुआ था, दिल्ली में ही हुआ था, प्रगति मैदान में. आई होप सम ऑफ them you must have attended that. तो that kind of provisions are quite good, जहाँ पे आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं. दे डू सम सेमिनार्स ऑल्सो. NI में भी सेमिनार्स होते हैं जो ओपन टू पब्लिक भी होते हैं. गो एंड अटेंड दैट, फाइंड आउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन दैट, राइट. एग्जैक्टली मैम. क्योंकि देखो मेनली क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने मास्टर्स में रिसर्च एक्सपोजर नहीं लिया होगा. अभी तो अगर हम लोग लॉकडाउन पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ऐसे थे हमारे जिनको कोई भी मास्टर्स में रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं मिला किसी भी फील्ड से. अब उनके अंदर ये एक नेगेटिविटी पहले से आ चुकी है कि मुझे तो कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कैसे अप्रोच करूँ. तो मैम ने बहुत सही बताया कि यू हैव एन आइडिया, ऑल्दो आपके पास एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपके पास एक थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस है, आपके पास एक आइडिया है. राइट दैट आइडिया टू द साइंटिस्ट. आप डायरेक्टली उनको मेल करो, या बहुत सारे लेक्चर्स हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना हमारे, आप उनकी वेबसाइट पे जाते रहो. देर आर लाइक मैनी लेक्चर्स जो किसी रेप्यूटेड साइंटिस्ट जो वहाँ पर आकर अपनी टॉक दे रहे हैं. इवन नोबल लॉरिएट इंडिया में बहुत आते हैं, जो नोबल लॉरिएट होते हैं ना हर एक फील्ड में, तो वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में आते रहते हैं, वहाँ अपनी टॉक देते हैं. एंड दे आर फ्री टू ज्वाइन. आप जाकर अब बस अवेयर रहिए कि यहाँ पर ये साइंटिस्ट इस टॉक को इस दिन दे रहे हैं. आप जाइए वहाँ जाकर सिंपल रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड ज्वाइन करिए. एंड इवन वहाँ आपको मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का, तो अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखिएगा. बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना कि केवल इंटरव्यू पर ही आपको फोकस करना. और मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप कम्युनिकेट करिए बिफोर लाइक गोइंग टू इंटरव्यू. आप किसी भी साइंटिस्ट की प्रोफाइल चेक करिए. प्रोफाइल चेक करने के बाद आप उनके रिसर्च को पढ़िए, और अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है उसमें, आपका कुछ इनपुट है, वही आइडियाज़ को आप मेल करिए.
और वो डेफिनेटली अगर उनको अच्छा लगता है तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और वहाँ आपके ना सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, रजीज सर आइए। ठीक है, अभी हमें ऑनलाइन जो है सर ज्वाइन कर चुके हैं, ऑफलाइन भी सर आ गए हैं, और हमारे अभी जो नदीम सर है वो भी शायद आई गेस ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं। तो नदीम सर को केमिस्ट्री वाले तो लोग जानते होंगे, बाकी रजनीश सर हैं। हेलो रजनीश सर। तो स्टूडेंट सर हमारे साथ में ना वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं और ऑफलाइन भी हैं, तो इनके जो डाउट्स हैं, जो एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जो भी बेसिक डाउट्स हैं वो सर से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन में कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसका कोई डाउट है तो प्लीज़ रेज योर हैंड, और आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इवन आप टाइप भी कर सकते हैं, हम लोग क्वेश्चंस आपका देख लेंगे। ठीक है, चलिए आप बच्चे मैथमेटिक्स वाले, आपके कोई डाउट्स हैं कुछ पूछिए ज़रूर। जी सर, मेरा ये डाउट है कि जैसे एमएससी में हम लोग डिसर्टेशन करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके ही करते हैं, तो फिर जब पीएचडी के लिए जब हम प्रिपेयर करने के लिए लाइक वो इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं तो हमें सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए या फिर कोई हमारा पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो उसी को लेके प्रिपेयर करें, सो दैट कि वो इंटरव्यू के टाइम पे हमसे ये पूछे कि पर्टिकुलर टॉपिक आपका कौन सा है, तो उसी पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर और भी टॉपिक्स? ओके, वेरी नाइस। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने डिजर्टेशन किया है तो उस डिजर्टेशन के बारे में तो आपको एकदम अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट दैट डिजर्टेशन ऑल्सो, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने जो काम किया है, सामने जो पैनलिस्ट बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते या उतने अवेयर नहीं हो। दे ऑलवेज आस्क यू अ बेसिक क्वेश्चंस, तो बेसिक्स तो आप अपने फील्ड के स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा, लेकिन जो आपका डिजर्टेशन है उसको आप सुपर स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आने वाले। और उसमें भी देखो, हर किसी को ना हर फील्ड की नॉलेज नहीं होती है, बट लेकिन किसी भी फील्ड में यूज़ होने वाली जो टेक्निक्स हैं वो तो कॉमन ही रहती है। आप सपोज आप डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम कर रहे हो तो देयर आर मैनी कॉमन टेक्निक्स जो आप हर एस्पेक्ट में यूज़ करते हो। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपने ये काम किया एंड यू आर सेइंग कि मैंने इस काम को, इस टेक्निक को यूज़ करके किया, नाउ एवरीवन नोज अबाउट दैट टेक्निक, तो दे आर गोइंग टू आस्क बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम दैट टेक्निक। तो जो भी आपने वहाँ टेक्निक यूज़ किया उसके बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यही चीज़ पर फोकस रखो एकदम बिल्कुल। अच्छा, दो तरीके होते हैं, एक पहले से ही वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट है, सपोज आप पीएचडी में जा रहे हो, पहले से एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट है कि ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको बता दिया गया है। नाउ दे कैन आल्सो आस्क सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट दैट प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, बट मैक्सिमम चीज़ें आपकी लर्निंग से पूछी जाएंगी कि आपने क्या लर्न किया। मैम को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है इंटरव्यूज़ का, तो पूछा वही जाता है कि आपने क्या काम किया, उससे चीज़ें मतलब बेसिकली जानना ये चाह रहे हैं कि आपने जो काम किया आपको उसको कितनी नॉलेज है। ऐसा नहीं कि आपने काम किया आपको उसी की नॉलेज नहीं है तो बाकी चीज़ों की नॉलेज कहाँ से होगी। अच्छा ना, ठीक है, तो इसलिए वो जो आपका काम है उसको तो आप एकदम सुपर करके रखिएगा, और बाकी बेसिक चीज़ भी आप जो है डिस्कस करिए। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। आप जिस लैब में जा रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको पता कि आज कल आपको 2 दिन बाद इस लैब में इंटरव्यू देने जाना है, इस इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जाना है, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत वहाँ का प्रोफाइल देख लेना चाहिए कि आखिर वहाँ पर काम क्या चल रहा है, कौन सा मेजर टॉपिक है, या किस मेजर टॉपिक से अभी बहुत अच्छे पब्लिकेशंस आए हैं, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होनी चाहिए। और साथ के साथ अगर कोई लाइफ साइंस का स्टूडेंट है, गलती क्या कर देता है, कभी कभार ये बोला जाता है कि आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता दो। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताओगे तो आपको ब्रॉड नहीं बताना, एकदम से आपने बोल दिया मोल बायो, अब वो पहले ही बोलेंगे मोल बायो तो इतना वास्ट है, तो आप जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी जाओगे ना, तो उसके अंदर के भी सब डोमेन एटलीस्ट ऐसे चूज करो कि जहाँ पर आपने आपको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान में रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो कोई डाउट किसी का? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं अलोंग विद द प्रोजेक्ट। आपने जिस पे प्रोजेक्ट किए तो उसमें तो आपको मास्टर वो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि यू आर द मास्टर ऑफ योर प्रोजेक्ट, सो उसके ऊपर तो क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। बट अलोंग विद दैट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आपके 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स कौन से, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी नहीं भी पूछा जाता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाने के लिए भी पैनलिस्ट पूछ लेते हैं। जैसे सर ने बोला कि सब टॉपिक के रिगार्डिंग पूछना चाहिए, तो समटाइम्स ना जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपने जिससे या कुछ थेसिस लिखा है या कुछ भी आपने करा है एमएससी में, बट समटाइम्स उस पैनल में आपके टॉपिक का तो कोई है ही नहीं, तो अब मैं वो सब टॉपिक पूछ दूंगा फॉर एग्जांपल, तो सामने वाले तो ये समझेंगे बहुत रेस्ट्रिक्ट है, तो इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं जा सकता है। मतलब देखो, नेगेटिव पॉइंट यूजुअली नहीं जाएगा उसका ना, क्योंकि आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया, टेक्निक्स तो आपने कॉमन यूज़ किए ना, तो दे कैन आस्क अबाउट द टेक्निक्स, दे कैन आस्क अबाउट द प्रोसीजर जो आपने यूज़ किया है,
तो इसका नेगेटिव तो नहीं जाएगा। हाँ, रेस्ट्रिक्ट मत रखिए आप अपने आप को। बेसिक्स क्वेश्चन ऑलवेज आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, तो जो भी बेसिक्स हैं आपके फील्ड के वो तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखिए। सपोज केमिस्ट्री ही है हमारा, सॉल्यूशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, बाकी तो सर बताएंगे। लाइफ साइंसेस है तो बेसिक बायोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में जो भी बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर बार नहीं होगा सही एकदम बिल्कुल कि पैनलिस्ट जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो, बट ऐसा भी नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। डेफिनेटली एक बेसिक कंसेप्ट पर ही कोई ना कोई रिसर्च होगा, और वो जो वहाँ पैनलिस्ट हैं उनके तो वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग है ही ना, ठीक है। तो इसलिए रेस्ट्रिक्ट मत करना अपने आप को ना। मेरा एक डाउट है, जैसे मैम ना JNU से PhD किया है, तो मेरा भी इंटरेस्ट JNU से PhD का है, एंड बट द प्रॉब्लम इज़ कि मतलब मेरे को कन्फ्यूजन ये रहता है कि सपोज़ आप इसमें बहुत ज़्यादा मैटर क्या रहता है, आप इंस्टीट्यूट जैसे फॉर एग्जांपल आप JNU से कर रहे हैं या IIT, आइजर्स या फिर अब्रॉड से PhD कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा इन द एंड आफ्टर PhD, या फिर आपकी रिसर्च में कितना दम है वो इंपॉर्टेंस ज़्यादा करेगा? एक्सपोजर क्या है, आपकी टेक्निक्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। देखिए दो चीज़ें हैं, आप PhD के बाद क्या करना चाहते हैं, राइट। अगर आप PhD के बाद पोस्ट डॉक करना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी रिसर्च जिस भी रिसर्च में किया आप उस पे के कितनी मास्टर्स है आपकी, और क्या टेक्निक्स आपने यूज़ करी, और जहाँ पे आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप वहाँ, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो आपकी टेक्निक्स कितनी स्ट्रांग है। पब्लिकेशन फाइनली आपका पब्लिकेशन कितना हो उसको देखते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू इंडस्ट्री तो आपकी इंडस्ट्री में सपोजिटली मेरे यहाँ से कुछ लोग नोन हैं जिन्होंने फ्लो साइटोमेट्री बहुत यूज़ किया है। हेमेनोलॉजी में फ्लो साइटोमेट्री की टेक्निक बहुत स्ट्रांगली यूज़ होती है। So if you are applying to some application scientist as a flow के लिए, तो आपके flow की टेक्निक्स कितनी strong है वो आपको पता होनी चाहिए। If somebody is doing in genetic analysis उसने किया है तो वो आपने एनालिटिकल टेक्निक कितनी स्ट्रांग है आपकी उस पर डिपेंड करता है। सो इट ऑल डिपेंड्स आप फर्दर उसके बाद करना क्या चाहते हो, लेकिन डेफिनेटली अच्छे इंस्टीट्यूट का एक अच्छा इम्प्रेशन तो होता ही है। So you know when your CVs are being selected, so definitely the cream will they will choose from the best of the institutes. JNU है, NI है, ISR है, so वो वहाँ से उठाते हैं। देन उसके बाद पब्लिकेशंस हैं आपके, उसको देखते हैं। उनका आपका फील्ड क्या है, जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं उस फील्ड में आपने क्या किया है उस पर डिपेंड करता है। सो आप कितना लर्नेबिलिटी है, कितने स्ट्रॉन्ग हैं आप अपनी टेक्निक्स में जो आपने सीखी हैं, और सिर्फ अपने सब्जेक्ट के अलावा भी आपने और क्या नया टेक्निक सीखा, कैसे उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट किया, वो इम्पॉर्टेंट है। वर्सेटैलिटी इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। एंड वन लास्ट क्वेश्चन एक और है मेरा, तो वो ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप PhD करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ना मास्टर्स में मेरे सीनियर्स थे जो PhD में एडमिशन्स लिए थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, तो कनेक्शन रहता है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो यही बताता है कि MSc में बहुत इंटरेस्ट रहता है, भाई ऐसे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट आफ्टर 1 ईयर वो जो मोटिवेशन और जो पैसन रहता है वो धीरे धीरे डिप आने लगता है। तो जैसे आप लोगों का जर्नी रहा है, आप PhD किया है, तो एक जर्नी में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो जब डाउन्स आते हैं फिर आप कैसे आना है, वो उस पे रिगार्डिंग कुछ आप बताएंगे, क्योंकि PhD जिसी से भी उसकी जर्नी में हमेशा ये रहता ही है। जब आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पहली बात तो ये तो प्रिपेयर करके रहिए कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि आप नए टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया में हमारा कोई डेफिनेट 3 इयर्स का प्रोग्राम नहीं रहता है कि ये आपने इस साल में ये खत्म किया। तो इंडिया में क्या, जब भी आप रहते हैं आपको फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स तो आपको पहले आपका कोर्स वर्क रहता है अब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। देन 6 मंथ्स में आप अपना प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं। दैट प्रॉब्लम इधर इज़ गिवन बाय योर साइंटिस्ट, और यहाँ आपको खुद इवॉल्व करनी होती है। तो उसमें क्या बोला जाता है कि ये हमारे पास टेक्निक्स इस इंस्टीट्यूट यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमारा ये फील्ड एरिया है, आप रिसर्च पेपर पढ़िए, ठीक है, और इसमें नई प्रॉब्लम्स को बताइए कि आप नया क्या करेंगे, राइट, ये डिफाइन होता है। तो जब आप यूजुअली क्या किया जाता है, आप किसी न किसी PhD के साथ टैग होते हैं। कई बार होता है कि एक फेक
एक लैब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क कर रही है, से प्रोटीन पे ही वर्क कर रही है, तो एक प्रोटीन के बाद दूसरा प्रोटीन उसको दे दिया जाता है. अब अप्स एंड डाउन्स की बात जब कहते हैं कि डाउन्स भी आएंगे, तो देन यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन इट कि मुझे तो इस पर करना ही करना है. आएगा रिस्ट्रिक्शन, आप थोड़ी देर फ्रेशन अप होइए, टॉक टू योर अदर PhD मेट्स, जहाँ पे आप अपने थोड़ी देर के लिए अपने थॉट्स को रिलीव कर दीजिए, सो दैट आप यू कैन थिंक फ्रेशली, राइट. टॉक टू योर मेंटोर ऑल्सो, जो आपको बताए कि मुझे आपको नया क्या करना है. कई बार लो बैक सब आते हैं जब आपको यही नहीं समझ आ रहा था मैं इसके बाद करूँ क्या. सो आंसर इज यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. सो सोल्यूशन कहाँ पे आपके मेंटोर देंगे, आपके नए PhD जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं. यू ट्राई टू एक्सप्लोर मोर रिसर्च पेपर्स, तो दैट कीप्स ऑन गोइंग. आपको वो वर्कआउट तो करना पड़ता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स बहुत फेल होते हैं. ये स्मूथ जर्नी नहीं होती है रिसर्च में कभी भी. समटाइम यू हैव टू डिग आउट योर ओन वेल. दैट मीन्स वो टेक्निक अवेलेबल ही नहीं है आपके. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो इंजेक्टेबल माइस में उसको ड्रग देनी कैसे है, ये मेरे यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी टेक्निक. सो मी एंड माई मेंटोर वी डिस्कस्ड, वी प्लान्ड आउट कि क्या नया हम कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली द साइंस ना. सो वी डेवलप अ सिस्टम कि हम दे सकें. एंड सेम टेक्निक मेरे जो कुलीग थे साथ में PDC2 में, ही यूज़ द सेम थिंग. ही आस्क्ड मी कि मेरे को हेल्प कर दो, मेरा एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मुझे इनहेलेशन में ट्राई करना है. सो आई हेल्प देम आउट, राइट. सो आस्किंग फॉर हेल्प इज़ अ गुड वे टू कम आउट फ्रॉम योर ब्लूज. एग्जैक्टली मैम. ये ना बहुत सारे बच्चों को ना आता है कि एक टाइम के बाद उनको लगने लगता है कि क्या मेरा डिसीजन सही था, मैंने इस फील्ड को लिया. तो देखो किसी भी फील्ड में आप जाओगे ना, कहीं पर भी, इवन आप किसी इंडस्ट्री में भी जाओगे, अप्स एंड डाउन लाइफ में हमेशा रहे. अप्स एंड डाउन का नाम ही लाइफ है. तो उस टाइम पर जब आपको लग रहा है कि हाँ डाउन है, तो टॉक टू योर मेंटोर. मैम ने कहा अपने कलीग से बात करो. हो सकता है कि आप जो है एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन आप कहीं स्टक कर गए. रीड द रिसर्च पेपर कि आपने गलती कहाँ की. तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करेंगी. और ये नहीं कि डाउन अगर आ गया तो बस आप जो है खुद को लेके बैठ गए और डिप्रेस हो गए. हमेशा अपने आप को ओपन रखो आइडियाज़, क्योंकि कब कहाँ कौन सा आइडिया स्ट्राइक कर जाए और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कोई नहीं जानता. तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जब भी डाउन्स आए ना तो अपने आप को ओपन करो, ठीक है. और ये हर फील्ड में रहेगा. PhD अगर आप करोगे, रिसर्च आप करोगे, तो एक दिन तो आपको ज़रूर लगेगा कि शायद कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मैंने, लेकिन फिर आप कैसे निकलते हो उससे, यही सब कुछ है, ठीक है ना. तो बच्चों अभी हम लोग ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं. बस रजनीश सर आपसे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग रैप अप कर. यस, अगर कोई भी डाउट है, जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट में किसी के ऊपर भी डाउट है, तो आप चैट बॉक्स के अंदर डाउट बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपली अपना माइक ऑन करके भी अपना डाउट अगर आप बोलेंगे तो हमें सुनाई देगा. यस, अभी तक हम लोग जो भी बात करें विच इज़ इन इंडिया. सो इफ़ आई वांट टू एक्सप्लोर, आई वांट टू डू PhD abroad, so what are the options and what will be the difficulties there and what things are different there, so want to know that. सो बच्चे देखो, 2-3 चीज़ें मैं कुछ ऐड ऑन भी करता हूँ. व्हाट आर द वेज टू गो आउटसाइड. सबसे मेन तो ये ना कि आपके लिए रास्ते क्या हैं बाहर से PhD करने के. तो दो मेन रास्ते होते हैं हमारे पास. या तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के एग्ज़ाम्स होते हैं. जैसे सपोज़ अगर मुझे बाहर से PhD करना, तो पहली कंपलसरी होती है मेरे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम मुझे क्वालिफाइड करना. लाइक IELTS हो गया, TOEFL हो गया. पहले मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आगे की बात करूँगा. दूसरा हमारे पास एक GRE होता है, सब्जेक्टेड भी होता है और आपका एक कॉमन GRE भी होता है. ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आपके पास एक रास्ता ओपन हो जाता है. उसके अलावा पर्टिकुलर कंट्रीज़ अपनी अपनी जो है एंट्री गेट ओपन कर. जैसे मैम ने बोला डार्ड, आपने अगर सुना होगा, मैम ने एक डार्ड की बात की, जर्मनी स्पेसिफिकली वेलकम करता है. एक तो ये रास्ता है कि आप इन एग्ज़ाम को क्रैक करके आप अप्लाई कर सकते हो बाहर फॉरेन PhD के लिए, फंडेड PhD के लिए. हमेशा फंडेड PhD के लिए अप्लाई करना. दूसरा रास्ता सबसे सिंपल रास्ता है आप लोगों के लिए कि अगर आपके पास MSc के डिजर्टेशन का एक्सपीरियंस है और वो पब्लिश्ड एक डेटा अगर पब्लिश हो जाता है, या आपने सपोज अभी आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, आप नहीं चाहते हो कि इंडिया से PhD करो, लेकिन आप वो सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के बाद भी नहीं एब्जॉर्व हो रहे हो, तो एनरोल योर सेल्फ इन इंडिया. किसी भी रिसर्च में, अच्छे अपने फील्ड के रिसर्च में एनरोल करो. 1 साल आप अच्छे से मेहनत करो,
लाइक प्रोजेक्ट फेलो जो होते हैं ना, और ट्राई करो कि उस 1 साल के पीरियड में आप जितना मैक्सिमम हो सके लर्न करो, टेक्निक्स को लर्न करो, पब्लिकेशंस लो, और साथ साथ में अच्छे गाइड के अंदर में करो। तो 2 चीज़ें अब आपकी मैटर करेगी डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए। एक होगा आपका रिकमेंडेशन, आप जिनके अंडर में काम कर रहे हो। दूसरा अगर पब्लिकेशन है तो ठीक है, और ये सबसे आसान रास्ता है वहाँ जाने के लिए, बाहर से पीएचडी करने के लिए। क्योंकि वो जो पहला रास्ता मैंने बताया कि एक तो आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम क्वालिफाइड करोगे, दूसरा आप जीआरई क्वालिफाइड करोगे, तीसरा आप पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन का इंटरव्यू है या उनके जो प्रपोजल्स हैं उस पर काम करना स्टार्ट करोगे। दूसरा रास्ता क्या बताया मैंने आप लोगों को कि आप अपने आप को रिसर्च में इन्वॉल्व करो, इंडिया में एक्टिवली इन्वॉल्व करो, जितना हो सके लर्न करो, गाइड का एक रिकमेंडेशन हो जाता है आपके पास में, आप आराम से उसके बेसिस पर भी फिर आपको ये सब नहीं क्वालिफाइड करना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया या जीआरई हो गया, फिर आप उस रिसर्च के बेसिस पर आप चले जाते हो, वो आसान रास्ता है। दूसरा वहाँ से फ़ायदे क्या हैं, एक तो सबसे मेन जो ड्रॉबैक है इंडिया में ना पीएचडी का, वो है टाइम टेन्योर। मिनिमम आप किसी भी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओगे तो कम से कम आपको 5 साल तो मान के चल, 5 साल तो गवर्नमेंट भी फेलोशिप देती है आपको। वहीं अगर आप बाहर से पीएचडी करते हो तो ये टेन्योर आपका 3 ईयर, मैक्सिमम 3.5 ईयर, 4 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, तो ये एक अच्छा है। दूसरा, बहुत सारी एडवांस लेवल की टेक्निक्स हो सकता है कि इंडिया में अगर आप किसी, वैसे तो ऐसे कमी है नहीं इंडिया में ना, इंडिया में आप टॉप क्लास लेवल की जो है टेक्निक्स या सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बट फिर भी अगर आप सपोज उस इंस्टीट्यूट तक नहीं जा पाते हो, सपोज IITs या जो बड़े टॉप इंस्टीट्यूट हैं, तो एक वो रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, वहाँ उस तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, या फिर डिफरेंट काइंड का एक्सपोजर आपको वहाँ मिल जाता है, जो कि हमेशा अच्छा ही रहेगा अगर आप चाहते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में पीएचडी करना लाइक अच्छा नहीं, वर्थ है, बट वर्थ कहाँ से है, आप टॉप इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करो, ये एक सबसे मेन चीज़। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वो आंसर मिल गया। इसमें ना एक्चुअली मतलब ऑफ कोर्स अगर आप पीएचडी बाहर से कर रहे हो तो आपके माइंड में एक पर्टिकुलर टॉपिक है, दैट्स वाई यू आर अप्रोचिंग कि हाँ मेरा फाइनल है कि मुझे इसमें करना है वो पर्टिकुलर टॉपिक। सो देयर आर 2 वेज, एक तो वैकेंसीज निकलती है कि हाँ पीएचडी पोजीशंस यहाँ पर वेकेंट हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई करो, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर आप अलग से प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करते हो दैट इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर को कांटेक्ट करो, जिन भी प्रोफेसर का काम आपको अच्छा लगे उनको मतलब पर्सनलाइज मेल करो, ऐसा नहीं कि मतलब जनरली कि हाँ मेरे को इस पर्टिकुलर मोटा मोटा टॉपिक नहीं, बिल्कुल डीप में जाके उनका काम अच्छे से पढ़ के उनको मेल करो। अगर उनके पास अच्छी फंडिंग होगी तो फिर वो आपको कंसिडर करेंगे, लेकिन दूसरा जो है आपको वैकेंसी पे भी उतना ही फोकस करना है कि हाँ यहाँ पर पीएचडी की वैकेंसीज़ हैं। एंड इसके साथ साथ ना अब्रॉड में बहुत ज़्यादा मैटर करता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है उसकी, क्योंकि उसमें आप पूरा डिफ़ाइन करते हो कि व्हाट आर दोज थिंग्स फ्रॉम विच यू आर ड्रिवन टू डू रिसर्च। ठीक है, मतलब पूरी अगर आपने मास्टर्स में प्रोजेक्ट भी किया है तो क्या प्रोजेक्ट किया था, मतलब क्या आपका मेन आइडिया था, किस वजह से आपने इसी फील्ड को चूज़ किया, एंड आप अपने आप को कैसे देखते हो आगे, तो वो सारी चीज़ें हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखते हैं और वो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है जब हम अब्रॉड की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो GRE मतलब वो एक तरीके से आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी में आ जाता है, बट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है फिर उसके बाद वही इंटरव्यूज़ एंड ऑल। एंड अगर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं ना तो इंडिया में ऑफ कोर्स 5 इयर्स तो मिनिमम है ही है। अब अब्रॉड में ऐसा नहीं होता कि आपको कोर्स वर्क करना है, दैट्स वाई वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम है, और मतलब वहाँ पर जो राइट स्किल्स आपको चाहिए आपकी रिसर्च करने के लिए उस पे ज़्यादा मतलब उस पे आप ज़्यादा फोकस करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसमें डेटा एनालिसिस की ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी अगर मशीन लर्निंग हेल्प कर रहा है तो उसका कोर्स कर सकते हो, एंड प्रोफेसर से कांटेक्ट करके कोलैबोरेट करके। मतलब हाँ इंडिया में पूरा रिजिड है कि हाँ 2 साल कोर्स वर्क होगा, ऐसा भी होता है कि आप ऐसा कोर्स भी पढ़ रहे हो जिसका आपके रिसर्च से कोई कनेक्शन नहीं है, बट ऑफ कोर्स ओवरऑल तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। बट अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं तो जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 3 to 4 years, तो वो इस वजह से मेन है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन।